दाखवतो आता तुम्हाला. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द set operations today. What is the limitation of set operations? And we will start with kick up with the joins. Okay, joins. Okay, so let's just revise the set operations, because we will be studying this comparatively, set operations versus joins, and why these joins are considered as the most best and versatile function in the SQL. Okay, so let's see, select. So here we, in the threshold database, we have multiple tables. Okay, थोडं फास्ट व्हायला असेल तर सांगा. So orders and orders 1 and orders 2. So let's start from orders 1. Okay, union. Okay, so union, in the union we will combine the data, but we will remove the duplicates. Okay, so here you can see what columns we have considered. For now we have considered all the columns from both the tables, order 1 and order 2. Okay, so let me run the query again with the remaining attributes. If I select here order id, okay, order id, okay, and same I select here in order id from the orders. Okay, now it is running, it will run again. Okay, so now I just select customer id, customer id. I am just selecting this customer id from orders 1, and I am not selecting customer id from the orders 2, right? You can see it. So it is giving an exception. We already discussed this. All queries combined using union, intersect, or except operator must have equal number of expression in their target list. So it is saying we should have the same columns in the both the queries. So that is the drawback of this, and that has been made as a advantage for the joins. Okay, so what, let's take this as a, इस मैसेज को ही हम लेते हैं, ये क्या बोल रहा है ये. Or we will pick up with the joins. All the queries combined using the union or intersect must have equal number of expressions in the target list. Okay, so I will write this here as well, so you can revise later quickly. So drawback, I will write it here as a drawback of this. Okay, all queries here. A drawback. Okay. तो इसमें यह है कि इक्वल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन द टारगेट लिस्ट. इसमें मतलब सेलेक्ट स्टेटमेंट में इस वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट में जितने हैं उतने ही लेने चाहिए. तो इसके दो इसको हम समराइज ऐसे कर सकते हैं कि वी नीड टू हैव सेम number of columns in both the select statement. Okay, so ये तो फर्स्ट वाला हो गया. ओके, नाउ आई विल शो यू व्हाट हैपेंस. इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ. Conversion failed, converting the varchar value C02 to a data type int. So इसका ये मतलब है कि although we have two columns here, right, customer ID or order ID, and order ID and customer ID, these are there, but still it is giving the exception, right? Now I will take this here, both the same. Let's make it both same now. So just reminder that it gave an exception here. So now I am executing it again. Okay, so this time it is giving the correct output, but earlier
we had the exception. So can we say this as a second statement? Order of columns must be same must be same in both statement, right guys? So this is the this is the drawback of this one, uh, what we call. So there is another subordinate clause, as Ajay mentioned this one. So data types must be same. ओके, सो ये ऑर्डर आईडी का और ये ऑर्डर आईडी का दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, कस्टमर आईडी का और ये कस्टमर आईडी का डेटा टाइप सेम होना चाहिए. सो दैट दिस इज व्हाट आई मीन, डेटा टाइप मस्ट बी सेम फॉर सेम कॉलम्स. Okay, so these are the drawbacks and how we can get over these drawbacks. Okay, so let's start with the joins talk now. So joins या क्या होता है? Okay, joins भी सेम यूटिलिटी है. joins में भी यही बोलेगा कि आई विल हेल्प यू विथ ज्वाइनिंग टू और मोर टेबल्स. आई विल हेल्प ज्वाइनिंग टू और मोर टेबल्स. ओके, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि सिमिलरली ये इसमें भी वही हो रहा था, बस लिमिटेशन थे इसके. तो ये लिमिटेशन मैं एक करूँगा, इसको मैं ओवरकम कर दूंगा. तो ज्वाइन सिमिलर फंक्शनैलिटी ज्वाइनिंग टू और मोर टेबल्स, but it doesn't matter what data types you have, what are the statements you are selecting, what number of columns you are selecting, what are the order of column in the your statement. So it doesn't matter to the joins. It only condition matters. It they should have some column in common, some column common in both, column common in the tables. मतलब ये स्टेटमेंट भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है. तो यहाँ पे आज पूरा ही डेटा सेट, न्यू डेटा सेट क्रिएट कर देते हैं. ओके, दे शुड हैव द सेम कॉलम नेम इन द टेबल्स. ओके, एटलीस्ट दे शुड हैव some column common in the table. Some are they should have at least one. Okay, let me at least one, some whatever. So they should have at least one column common in the tables. Okay, if the column name is not same, even not same, we can also join the tables. Okay, अगर column name भी same नहीं ना, फिर भी हम join कर सकते हैं उसको. ऐसे नहीं कि सेम होना ही चाहिए, उसको फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो एक बार मैं एक नया डेटा सेट क्रिएट करता हूँ. ओके, अभी मैं पूरा करते जाऊँगा तो वो टाइम लगेगा. आई जस्ट आस्क ChatGPT, पूरा ही कर दो एक बार, सबका रिवीजन भी हो जाएगा. क्रिएट टेबल से स्टार्ट करते हैं. क्रिएट टेबल T1. ओके, T1 ID int नेम varchar. ओके, varchar इसका लेने दे दो 20. क्रिएट टेबल T1, इसको टेबल T1 दे देते नाम. और मैं फिर से T2 भी बना देता हूँ. और इसमें मैं रखता हूँ तीन कॉलम रखता हूँ. इसमें रखता हूँ आईडी नेम और सिटी भी रखता हूँ. सिटी पे इसको varchar में रखेंगे और लेंथ उसका 20, लेंथ रखते 20. ओके एंड ओके. So table T1 and T2. Now we have to join these two tables. Okay. Okay, so let me create data for inserting into this. Insert into
T1 values, okay, ID suppose 1 or name the job, okay. मैं 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ इसमें, तो इसको कर देता हूँ 3 ROHAM रोहन जॉन, यहाँ पे कर देता हूँ टॉम, ओके। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये वाले इंसर्ट कर देता हूँ मैं, ओके। 3 rows affected, insert into यहाँ पे मैं एक रख देता हूँ, और इसका जॉन है और इसका सिटी है सपोज लंदन, इसका मैं 4 कर देता हूँ, ओके। और 4 इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ इंडियन कर देते हैं इसको रोहित, और इसको दे देते हैं पुणे में, और फिर थर्ड कॉम रखते हैं टॉम, और फिर टॉम इज फ्रॉम स्कॉट, कहाँ का रखते हैं टॉम को, कैलिफोर्निया, okay. So let's just we have created the 2 tables and we are entering some values into it. तो ये वाला भी मतलब आना चाहिए लिखने को, कभी कभी लगते हैं ये भी, कभी कभी कमांड लिखना पड़ता है, मतलब मैनेजर के सामने तुम बैठ के तुम ये वाली कमांड अगर चैट जीपीटी से पूछ के लिखोगे ना तो वो बोलेगा क्या इसे क्या है तू, क्रिएट टेबल वाला। लोग जजमेंटल बहुत होते हैं, लोगों को जज करना बहुत आता है, नोबडी विल सपोर्ट यू, ओके। सो हम अभी क्वेरी करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 एंड देन अगेन वी विल रन, ये थोड़ा टाइम लग गया है लेकिन आप भी देख लोगे कि कैसे होता है, ओके। हमने यहाँ पे 2 टेबल बना दिए, वन इसमें है आईडी नेम, इसमें भी आईडी नेम सिटी है, ओके। और यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ 1 4 3 है, ओके। और यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे टॉम है, यहाँ पे अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये चाहिए, दोनों पहले तो 2 टेबल को ज्वाइन कैसे करते हैं, बाद में वो वाला देखते हैं कि यूज केसेस कैसे बनते हैं। तो हमने 2 टेबल कैसे ज्वाइन करने हैं, ओके। तो सेलेक्ट पहले इसके साथ कंपेयर करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पे अपना क्या है T1, यहाँ पे होता है ज्वाइन, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2 लिखने की ज़रूरत है नहीं, नाउ T2 सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 ज्वाइन T2, और ज्वाइन किस पे करना है, मैंने बोला था कि इस पे कुछ तो कॉलम चाहिए जो दोनों में कॉमन होगा, ओके। नहीं होगा तो भी चलेगा फिर भी, लेकिन उस पे ज्वाइन लगेगा ऑन, ये क्या बोला है अपने T1 से यहाँ पे T1 डॉट, अभी के लिए जस्ट वेट, थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, T2 डॉट मैं समझा दूंगा ये क्या हो रहा है, T2 डॉट ID,
यहाँ पे देख रहे हो तुम, दोनों टेबल इसने ज्वाइन कर दिए, ओके। और दोनों टेबल में से जो कॉमन है वो वाला लेके आया है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट में पहले क्या यूनियन किया था। और जस्ट लेट मी डू द यूनियन फॉर, ओके, यूनियन भी चला लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 यूनियन, यहाँ पे ये हटा देना। और यहाँ पे दोनों का भी मैंने अभी ये कर दिया हूँ, अभी देख लो तुम, ओके। ओके, हाँ, वी गॉट द एक्सेप्शन हियर, ओके गाइस, हियर वी गॉट द एक्सेप्शन। मैंने बोला था कि देयर मस्ट बी द, दे शुड हैव इसमें क्या था, ऑर्डर ऑफ कॉलम मस्ट बी द सेम इन द बोथ स्टेटमेंट, वी नीड टू हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द बोथ सेलेक्ट स्टेटमेंट, डेटा टाइप्स मस्ट बी द सेम। यहाँ पे डेटा टाइप्स, यूनियन के लिए डेटा टाइप्स तो सही है, लेकिन यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, T2 में हमारे 3 कॉलम्स है ना, राइट। यहाँ पे कितने कॉलम्स है T2 में 3 कॉलम्स है, इसलिए वो एरर दे रहा है यूनियन के लिए। लेकिन यहाँ पे तुम देख लोगे, अभी इसमें से रिस्पेक्टिव ऑफ कितने कॉलम है, इसको मैटर नहीं करता। या इसमें क्या था, T1 में कितने कॉलम थे, आईडी और नेम था बस, और T2 में क्या थे, आईडी, नेम और सिटी, फिर भी ये लेके आया। लेकिन यहाँ पे अभी अगर तुम ये देखते ना, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे रखते कि आईडी और नेम, आईडी कॉमा नेम फ्रॉम T2, आई थिंक दिस शुड वर्क, ओके। यहाँ पे देख रहे हो, लग गया जॉइन इस पे, लेकिन इसमें इसकी यूटिलिटी अलग है। तो ये मैंने बोला था कि ये वाला सेट ऑपरेटर कभी ज़्यादा लगता नहीं है, तो फॉर नाउ जस्ट इग्नोर दैट पार्ट, आई जस्ट शोड यू कि ये जो इसके ये थे कि ड्रॉबैक्स, तो हमने उसको एक कर दिया, ओवरकम कर दिया। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मैंने अभी तो सेलेक्ट स्टार लगा दिया है, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 ज्वाइन T2, ओके। T1 ज्वाइन, इसका सिंटैक्स अभी मतलब एक दो बार तुम करोगे ना तो याद आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। तो मैंने पहले बस ज्वाइन लिया है, ज्वाइन के बहुत सारे टाइप्स है, कैसे करना है वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि तुम 2 टेबल कैसे ज्वाइन करोगे, ओके। तो 2 टेबल ज्वाइन करने के लिए इसमें रहता है कि कोई तो वैल्यू होगी, उस पर तुम ज्वाइन करोगे, ओके। यहाँ पे मैंने किस पे ज्वाइन किया है, इस पर ID पे ज्वाइन किया है, ओके। लेकिन मैं इस पर भी कर सकता हूँ, नेम कॉमन कॉलम है ना, इस पर नेम पे भी कर सकता हूँ मैं, ओके। इसका सिंटैक्स याद रखो बस कि क्या होता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 ज्वाइन T2, ओके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 ज्वाइन करो उसको, कौन से टेबल के साथ, T2 के साथ। और किस पे ज्वाइन करना है, हमारे पास ऑप्शंस आते हैं ना, टाइप आईडी पे ज्वाइन करोगे या तो नाम पे ज्वाइन करोगे। यहाँ पे नाम, पहले हमने आईडी पे किया था, अब हम नाम पे कर रहे हैं, तो दिस इज सेम कॉलम, सो इसलिए तुम ये करोगे। ये वाला कमांड मतलब फ़िलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि ज्वाइन किसी भी कॉलम पे कर सकते हैं, कंडीशन ये है कि उसका मतलब डेटा टाइप्स वगैरह सेम होना चाहिए। वो वैसे तो नौबत आती नहीं, जब जस्ट कीप इन द माइंड, सो सेम कॉलम पे ही ज्वाइन करो, क्योंकि सेम डेटा रहेगा तो आउटपुट सही आता है। आईडी पे ज्वाइन करोगे तो अच्छा मतलब आउटकम एक्सपेक्टेड आ जाता है, तो सेम कॉलम पे ही ज्वाइन लगाना है कभी भी। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 ज्वाइन T2 ऑन T1 डॉट नेम T2 डॉट नेम। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे आईडी नेम सिटी, ये दो बार आउटकम में नहीं आ रहा है। तुमको ये चाहिए कि बस तुम यहाँ पे डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए, कि तुमको ये चाहिए कि दोनों टेबल में से कॉमन आईडी कौन सा है और उसका सिटी कौन सा है, ओके। सो लेट मी क्वेरी दिस डेटा अगेन। आप मतलब ये ज्वाइन करने से पहले आप मुझे बताओ कि इसमें से इनमें से कॉमन कौन है, दोनों टेबल में से कॉमन कौन है। वन जॉन, ओके। 2 रोहन, और 2 तो नहीं है इसमें, और फिर 3 टॉम, यहाँ पे 3 टॉम है, ओके। 3 टॉम कॉमन है दोनों में से। तो ज्वाइन क्या बोल रहा है कि ज्वाइन के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो फिलहाल के लिए अभी बस ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉमन लेके आ रहे हो, तो ओके। दोनों में से कॉमन क्या है, ओके, क्या है, जॉन आया और टॉम आया। दूसरा वाला जो था, दूसरा और चौथा, वो स्किप हो गया, देख रहे हो तुम। यहाँ पे जॉन, यहाँ पे ये नहीं आया, रोहन भी नहीं आया और रोहित भी नहीं आया। जो इंडियन वाले थे हमने स्किप कर दिया उसको।
मतलब इंडियन की कंडीशन पे नहीं किए थे, मतलब हम इस पे ज्वाइन लगाए थे, इस पे अभी मैं आईडी पे भी लगाऊंगा। ओके, इसको नेम नेम हटा के मैं आईडी पे ज्वाइन लगा देता हूँ। ओके, हाँ, लेकिन मैंने बोला था कि वहाँ पे एक कंडीशन भी रहती है कि तुम कितना डेटा लेके आ रहे हो। जैसे मॉडर्न वेयर हाउसेस है, बिग क्वेरी है, या फिर AWS का रेड शिफ्ट है। रेड शिफ्ट भी बिग क्वेरी जैसा है, वैसा रेड शिफ्ट है। ओके, मैं बाद में उस पर बहुत सारे सेशन है अपने उस पर। तो मुझे ये चाहिए कि T1 में से मेरे को आईडी और नेम चाहिए। यहाँ पे नेम आईडी और नेम रिपीट रिपीट हो रहा है, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड वे। अगर किसी ने बोला कि मुझे ये वाला डेटा निकाल के दो डेटाबेस से एक्सेल फाइल में, ओके, तो कैसे करोगे? वो बोलेगा यार भाई ये आईडी और नेम वाले कॉलम बार बार क्यों बनाए तुमने, मेरे को तो एक बार चाहिए, तुम बार बार क्यों बना रहे हो इसको? तो वो बोलेगा ठीक है सर, मैं उसको फिर करता हूँ। तो फिर वो क्या क्या करेगा, जाके T1 या T1 में से क्या चाहिए उसको, T1 में से उसको समझो कि आईडी चाहिए। ओके, और T1 में से ही मतलब T1 मतलब यहाँ पे टेबल नेम्स है। ओके, T2 में से भी उसको क्या चाहिए, T2 में से T1 में से फिर T1 में से क्या है, नेम लेते हैं इसमें, T1 डॉट नेम। ओके, और फिर आईडी नेम दोनों में से आ गया, दोनों में से कॉमन लगा रहे तो आईडी नेम आ गया। ओके, तो फिर अभी सिटी किस में है, सिटी तो बस इसी में है, T2 में है, T1 में तो है नहीं। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, T2 डॉट सिटी। ओके, हाँ, अभी देख लो यहाँ पे क्या आ रहा था, सारे डुप्लीकेट भी आ रहे थे। हम यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि भाई सारे लेके नहीं आना है तुमको, क्या क्या लेके आना है, बस T1 में से तुम आईडी लेके आओ, T1 में से नेम लेके आओ, और T2 में से बस सिटी लेके आओ। तो ये वाले तीन ही कॉलम मेरे पास चाहिए। ओके, हाँ बोले हाँ ठीक है, आज हो जाएगा। तो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट में बस वही लिखा था, पहले क्या हमने लिखा था कि सारा लेके आओ, सेलेक्ट स्टार। ओके, मैं इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट। आ गया, पहले क्या आ रहा था, डुप्लीकेट आ रहे थे। तो तुम्हारे पास कंट्रोल रहता है कि तुम कौन से कॉलम लेके आना चाहते हो इसमें। ओके, तो ये होता है जॉइंस गाइज। और जॉइन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम, मेरे पास अभी ये दो ही टेबल है। हमारे जब क्वेरी चलाते हैं ना हम, उसमें 10-10 टेबल पे जॉइन लगाते हैं, और एक एक टेबल में पेटाबाइट्स ऑफ डेटा रहता है, टेराबाइट्स ऑफ डेटा रहता है। तो बहुत क्रिटिकल बन जाता है कि तुम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, कौन सा जॉइन लगाओगे, कौन से कॉलम पे लगाओगे। सब मतलब अगर किसी गलत कॉलम पे मतलब ज्वाइन लगा दिए तुम, और उसमें से डेटा मैच नहीं हो रहा है, मैचिंग कॉलम पे ज्वाइन लगाओगे ना तुम। अगर तुम सिटी के साथ ज्वाइन लगा रहे हो तो डेटा अच्छे से ज्वाइन होगा। सिटी को तुम कंट्री के साथ ज्वाइन लगवा रहे हो तो कैसे, मतलब इट डजेंट मेक एनी सेंस। वो ज्वाइन भी लगेगा नहीं, और सारे नल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। नल रिकॉर्ड्स कैसे आते, गलत क्वेरी गलत ज्वाइन लगाने के बाद नल रिकॉर्ड कैसे आते, वो हम कल वाले लेक्चर में देखते हैं। इसमें अभी तो समझ में आ गया ये वाला ज्वाइन कैसे होता है। ड्रॉबैक जो सेट ऑपरेटर के जो ड्रॉबैक हमने ओवरकम कैसे कर दिए थे। ओके, फिर एक बार मैं ये पूरा समझाता हूँ। आई नो दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब देखोगे ना तुम, ये बहुत क्रिटिकल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। जो डेली यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मतलब ये तो लगेगा क्या ही बेसिक क्वेरी लिखी है। तो लेकिन जब जब अगर तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा कि ये क्या हो रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम लिख रहा था, मेरे को तो समझ में नहीं आता था कि ये किस पे लगाना होता है, क्या लगाना होता है, और यहाँ पे ऑन लगाना है, वेयर लगाना है, कुछ भी मतलब बहुत सारे मतलब अनवांटेड सवाल आ जाते हैं दिमाग में कि ये क्या हो रहा है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रखो, तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि ये तुम यहाँ पे डिसाइड कर लो। ओके, या फिर ऑर्डर्स वाला डेटा सेट ले लेते एक बार, उस पर तुम क्लियर हो जाओगे। ये तो हमने आज का बना दिया है। तुम सोच रहे होगे कि सर ने तो ऐसे बना दिया होगा कि उनको समझ में आ जाए। ये वाला ले लेते हैं हम, ऑर्डर्स वाला। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके, जॉइन ऑर्डर्स। सिंटैक्स तो थोड़े दिन के लिए याद रखो, मतलब ट्राई टू जस्ट रिमेंबर दिस ऑन। यहाँ पे फिर लिखेंगे, और फिर मैंने बोला था कि हर बार तुम यहाँ पे ऑन, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा ना, ऑर्डर्स 1 डॉट, फिर ऑर्डर आईडी पे लगा देते हैं इसमें, इक्वल टू
ऑर्डर्स टू डॉट ऑर्डर आईडी, यहाँ पे मैंने लगा दिया ज्वाइन। ओके, सिंपल है। अभी ये देख लो, यहाँ पे क्या है, ये दोनों में से बस ऑर्डर आईडी कौन सा था, 101 ही, सॉरी 1 ही, दोनों में 1 ही था। आई थिंक आई विल शो यू स्टिल। यहाँ पे ऑर्डर आईडी 1 है और ऑर्डर्स 2 पे यहाँ पे ऑर्डर्स 2 पे यहाँ पे भी देखो बस ऑर्डर आईडी 1 ही है। दोनों में से कॉमन कौन सा है, इस पे हम लगा रहे ऑर्डर आईडी पे ज्वाइन लगा रहे। लेकिन यहाँ पे आप देख लोगे, अभी मैं यहाँ पे तो ये ज्वाइन कैसे लगता है ये समझ गए आप। लेकिन यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर्स 1 ज्वाइन ऑर्डर्स 2। ओके, फिर मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कि ऑर्डर्स 1 ऑर्डर्स 2 ऑर्डर्स 1 ऑर्डर्स 2। ये थोड़ा ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। ऑर्डर्स 1 को हम बोलेंगे कि O1 बोलेंगे, इसको O1 बोलेंगे, और ऑर्डर्स 2 को बोलेंगे हम O2। सिंपल है। एलियास मैंने बोला था ना, एलियास देते हैं। एलियास में ऐसा था कि तुम इसको एज लिखोगे तो भी चलेगा, और इसको एज नहीं लिखोगे ना तो भी वो समझ लेगा कि इसको तुमने एलियास बनाया है इसका। तो यहाँ पे तुम अभी ऑर्डर्स 1 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं, समझ रहे हो तुम, ऑर्डर्स 1 नहीं लिखूंगा मैं, इसको O1 लिखूंगा बस, चल गए। अरे ये क्या हो गया, 0 आ गया क्या, O1 ओके, O1 डॉट ऑर्डर आईडी, और इसको क्या दूंगा मैं, O2 डॉट ऑर्डर आईडी। और मतलब एलियास किसी को, मतलब मेरा नाम उत्तरेश्वर है, उत्तरेश्वर को तुम पूरा उत्तरेश्वर बोलोगे हर बार उत्तरेश्वर को लिखते जाओगे, बोलते जाओगे, तो इट इज़ नॉट गुड वे। तो वो मराठी में होता है ना नाम, और क्या होता है उसका, तो तीते लगाए तो हाँ, सर्वनाम क्या होता है उसके लिए, सर्वनाम होता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उसको हम एलियास दे रहे हैं कि भाई ऑर्डर्स 2 को हम बोलेंगे O2 और ऑर्डर्स 1 को हम बोलेंगे O1, और उसको ज्वाइन करेंगे हम। तो मतलब क्वेरी इट हेल्प्स ओनली फॉर द क्वेरी राइटिंग, क्योंकि तुम्हारे मतलब ये होते हैं ना, सपोज 10 टेबल की क्वेरी तुम लिख रहे हो मैन्युअली, और 10 बार तुम ऑर्डर्स लिखते नहीं बैठोगे, तो उसके लिए थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन बन जाता है कि तुम फटाक से क्वेरी लिखोगे। ऑर्डर्स 1 O1 लिखूंगा, ऑर्डर्स 2 के लिए O2 लिखूंगा, और फिर भी वो फटाक से बन जाएगी क्वेरी। तो इसके लिए एलियास वाला फंक्शन होता है। तो काम उसका सेम ही है, बस ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो राइटिंग में भी, तो देखने वाले को भी अच्छे से लगेगा क्वेरी बहुत अच्छे से लिखी है। मतलब ये थोड़ा इसका ये बंदा एलियास कैसे देते हैं, एलियास इसको एस भी नहीं दोगे ना तुम, वो एसक्यूएल सर्वर समझ जाता है कि इसको तुम एलियास कर रहे हो, क्योंकि इस दोनों के बीच में गैप है। ओके, एलियास नहीं दिया तो भी चलेगा, एएस नहीं लिखा तो भी चलता है इस पर। ओके, ज्वाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ज्वाइन के लिए बहुत टाइम स्पेंड करूँगा आपके साथ। मतलब आज का आधा पूरा लेक्चर इसी में गया, लेकिन इसके अभी ज्वाइंट्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं। अभी मैंने तो सीधा ज्वाइन लिखा है इधर, राइट, यहाँ पे सीधा ज्वाइन लिखा है। अभी आते हैं ज्वाइंट्स के, उसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमने डेटा टाइप्स पढ़े, उसके लिए भी इसके भी ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स के भी टाइप्स होते हैं। तो इसमें होता है कि लेफ्ट ज्वाइन, ओके, फिर आता है राइट ज्वाइन, फिर फुल ज्वाइन, यहाँ पे तो हमने एक टेबल दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन कर लिया था। फिर वहाँ पे एक और ज्वाइन आता है, सेल्फ ज्वाइन। नाम से ही समझ रहे हो आप, खुद के साथ खुद को जोड़ रहे हो। सेम टेबल को उसके साथ तुम कैसे जोड़ोगे, तो उसके लिए आता है सेल्फ ज्वाइन। ओके, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि फुल लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। मतलब ये आउटर भी लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल ज्वाइन। और फिर जो हम ज्वाइन लिखते हैं ना, ज्वाइन
इसको बोलते हैं जॉइन, या इनर जॉइन भी लिखोगे ना तुम, उसके लिए इनर जॉइन लिखोगे। इनर मतलब इनर जॉइन में क्या होता है कि सारे कॉमन वाले आते हैं। लेफ्ट वाले में से अभी लेफ्ट कल मतलब थरोली एकदम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि लेफ्ट जॉइन में क्या आता है। मैं लिख के दूंगा, कुछ लोग अभी भी इसके यूज़ कर रहे हैं ना, उनको भी मैं ये वाला फंडा नहीं आज तक समझा होगा कि जॉइन एक्चुअली होता क्या है, लेफ्ट जॉइन में एक्चुअली होता क्या है। मैं कल एक एग्जांपल लूँगा, और मतलब अभी जो अपने क्लास में बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ करते होंगे, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और फिर आउटकम कैसे चेंज होता है आप ही बताना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली काम करता है, इसके बिहाइंड द लॉजिक क्या होता है। ओके। और फिर होता है सेल्फ जॉइन तो हो गया, फिर होता है क्रॉस जॉइन। इतने 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 जॉइन तो तुमने कभी सुने भी नहीं होंगे, ये वाले तो। क्रॉस जॉइन तो कभी हमने तो सुना ही नहीं, क्रॉस जॉइन भी होता है। और फिर ये वाले और कुछ बच्चे हैं क्या, एक होता है वो वाला मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं एक बार देखता हूँ कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल जॉइन बोलते हैं, नेचुरल जॉइन बोलते हैं शायद, नेचुरल जॉइन होता है शायद। वो मैं कल फिर एक बार फिर चेक करके बताता हूँ। ये सारे मतलब लेफ्ट जॉइन क्या, इनर जॉइन का होता है, जॉइन और इनर जॉइन इसमें क्या है, कॉमन वाले आए, तो इसको मैं इसको ऐसे भी लिखूँगा ना, जॉइन को मैंने ऐसे भी लिखना है, इनर जॉइन लिखा ना तो भी चलेगा, सेम आउटकम आएगा। देख लो सेम आउटकम आ रहा है, ज्वाइन लिखा तो भी आया, इनर ज्वाइन लिखा तो भी आया। तो फिर या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखूंगा या लेफ्ट ज्वाइन लिखूंगा तो भी आउटकम सेम ही आएगा। ओके। तो ये वाले जो सारे ज्वाइंस के टाइप्स है हम कवर करेंगे। अभी तो हमने आज तो दो ही टेबल ज्वाइन करे, राइट। यहाँ पे ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 ही ज्वाइन करे, 3 टेबल कैसे ज्वाइन करेंगे कल वो वाला भी देखते हैं। और फिर इससे स्टार्ट करते हैं, इनर ज्वाइन से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, कन्फ्यूजन वाला एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो या इस पर ज्वाइन तक मतलब होता क्या है वो समझ ही गए होंगे आप। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ लो गाइस, बिकॉज वी हैव जस्ट 3 minutes left फॉर टुडे। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग।